student. My name is Neha Yadav and I am from Noida Institute of Engineering and Technology, Pharmacy Institute. Today I am going to deliver another lecture from Physical Pharmaceutics 1. The topic of my today's lecture is sublimation critical point and eutectic mixtures. So before proceeding to this, I would like to give a brief summary of my first lecture, previous lecture which I have taken, that we have discussed in that lecture states of matter, changes in states of matter, latent heat and vapor pressure. ये सारी चीज़ें हम इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेट क्या होती है, मैटर क्या होता है ना, चेंजेस, हाउ चेंजेस अकर इन द स्टेट ऑफ मैटर ऑन द चेंजेस ऑफ दी स्टेट्स, लाइक फ्रीजिंग होगा तो कैसे हो जाएगा, सब्लिमेशन में कैसे होगा, डिपोजिशन में कैसे होगा, व्हाट इज़ वेपराइजेशन, हाँ, व्हाट इज़ कंडेंसेशन, व्हाट इज़ मेल्टिंग. सो with that we also covered the latent heat कि latent heat क्या होती है, that is the hidden heat. And lastly we have talked about in that class, that is the vapor pressure. So today I am continue from there only. I am going to the next lecture, that is my topic is sublimation. So sublimation, you already know sublimation, it is defined as the process of transformation of solid directly into the vapor phase without passing into liquid phase. सब्लिमेशन जैसे हमने पहले भी बात करी, अभी भी बता रहे हैं, सब्लिमेशन क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जहाँ पे आपका कोई भी सॉलिड पार्टिकल डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में चला जाता है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू योर वेपर फेज. वेपर फेज में जाए बगैर वो आपका मीन्स लिक्विड फेज में जाए बगैर वो डायरेक्टली वेपर फेज में चला जाता है. सो दैट कंडीशन इज नोन एज sublimation. A number of substances including camphor, carbon dioxide, menthol, naphthalene, etc. are exhibit the phenomena of sublimation. So here is the example camphor. Camphor आप लोगों ने देखा होगा, जिसे हम हिंदी में कपूर बोलते हैं. जनरली वी यूज इन आर पूजास. ठीक है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है, जैसे ही आप उसे बर्न करते हैं इट विल कम्स टू दी गैसियस फॉर्म. Then you also know the carbon dioxide, menthol you also know, naphthalene you also know. Naphthalene balls are also kept in the clothes to prevent from any kind of infection in the clothes. So other substances such as ice can also be forced to exhibit the phenomena of sublimation by varying the temperature and pressure. The process being adopted during freezing, drying of heat labile substance. So in sublimation we can have the next thing, that is deposition. अब हम इसमें डिपोजिशन की कैसे बात कर रहे हैं, हमारे पास ये क्या था, सॉलिड था. सॉलिड से यहाँ पे क्या है आपके पास, सीधे से ये है गैस. दिस इज योर सॉलिड, दिस इज योर गैस. दैट चेंजेस ऑफ सॉलिड टू डायरेक्टली इनटू द गैसियस फेज इज नोन एज योर सब्लिमेशन. एंड गैसियस से सीधे आपका सॉलिड फॉर्म में अगर कन्वर्जन होता है तो उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन. ठीक है, सो अब हम डिपोजिशन की बात करें. डिपोजिशन इज अ थर्मोडाइनमिक प्रोसेस. इट इज अ फेज ट्रांजिशन इन विच गैस ट्रांसफॉर्म्स इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज. अब आपने ऊपर देखा, ना ही सॉलिड से गैस में जाने के लिए लिक्विड फेज अवेलेबल है, ना ही आपका गैस से सॉलिड में आने के लिए लिक्विड फेज अवेलेबल है, राइट. So the reverse of deposition is sublimation and hence sometime deposition is called as desublimation. तो हम deposition को ही desublimation भी बोलते हैं. One example of deposition is the process by which in sub-freezing air water vapor changes directly to ice without first becoming a liquid. This is how snow forms in clouds as well as how frost and hoarfrost form on the grounds of the surface. तो जो snowfall होती है आपकी, that is the form of deposition only. Okay. Nextly we have the phase diagram of a substance and we are going to explain the sublimation in detail. Okay. So here I'll
this is your pressure and this is your temperature. Okay, is it clear? Now I am going to explain the sublimation phase diagram, which is illustrating the principle of your sublimation. Here what we'll have a point. Here we'll go with, let us consider this is a A point, this is a B point, okay, and here below this it comes to the C point. This is your phase. This particular point, it is known as your triple point. Okay, so this is the solid, this is the liquid, and this is the vapor phase. Okay, here I have written solid, liquid and vapor phase. Okay, so in this what we are going to discuss the phase diagram for illustrating the principle of sublimation. I have already drawn the curve जिसमें क्या है आपका temperature on y axis and pressure on your x axis. So आपने देखा होगा आपके x axis पे ये solid portion है, this is your liquid portion and this is your vapor portion. एक फेज ऐसा आएगा जहाँ पे आपकी ये तीनों की तीनों चीज़ें एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, ऑल एक को एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, सॉलिड भी रहेगा, लिक्विड भी रहेगा, वेपर भी रहेगा. दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज आर ट्रिपल पॉइंट. ठीक है, सो फ्रॉम हियर आई विल कंटिन्यू. अ कर्व AO रिप्रेजेंट दी a curve AO here where it is O. The curve AO represents the melting point of solid phase of the substance at a different pressure. जैसे जैसे हम प्रेशर चेंज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, आपका जो भी आपका सॉलिड है वो फॉर्म चेंज करता जाएगा. Along the curve OA, the solid exists in equilibrium with liquid phase. सॉलिड के साथ ही वो लिक्विड फेज में भी एग्जिस्ट करता है. ठीक है, नेक्स्टली टू द लेफ्ट ऑफ द कर्व the substance exists in solid while the right in the liquid state, here in the solid and here it is in liquid. Now BO represents the vapor pressure of the liquid form of the substance at various temperature. BO means your this one, this curve BO, it indicating your vapor pressure. ठीक है, now the curve is known as vapor pressure curve of liquid. BO आपका क्या है, vapor pressure curve of liquid. Above this curve the material exists in the form of liquid while below it only exists in the form of vapor. इस पॉइंट से ऊपर वो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, इससे बिलो जैसे ही वो आते हैं वो वेपर्स फॉर्म में हो जाते हैं. ठीक है, द कर्व CO रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड. अब सॉलिड में आपका ये जो कर्व है CO, where is our C, this is our point C, this denotes your this is CO, this curve denotes your vapor pressure form. Okay, vapor pressure form. To the left of the curve only solid exists while to the right only vapor exists. Form is stable. However, there exists one point that is O. एक पॉइंट जो O एग्जिस्ट करता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज O. ठीक है, तीनों के साथ, where all three phases of the material are in equilibrium with each other and it is known as the triple point which I already told you. ठीक है, जहाँ पे हमारा सॉलिड, लिक्विड और वेपर तीनों के तीनों एक जगह पे एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज डिनोटेड एज O और उसी को हम ट्रिपल पॉइंट बोल रहे हैं. ठीक है, फॉर द प्योर वाटर this correspond to a pressure of 610 Newton per meter square and temperature of 0.0075 degree Celsius. Now let us consider a point X which is below the triple point where the substance is present in the form of solid. अब हम 0 से below एक point ले रहे हैं, that is X. ट्रिपल पॉइंट से बिलो. इफ हीट इज अप्लाइड टू दैट पॉइंट, हाँ, उस सब्सटेंस, अगर एक्स को अगर हम हीट
प्रोवाइड कर रहे हैं, इट पासिस डायरेक्टली इनटू द वेपर फेज विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। लिक्विड से जाए बगैर वो सीधे से क्या हो जाएगा, गैशियस फॉर्म में, वेपर्स फॉर्म में चला जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। ठीक है, वही तो है, सॉलिड से डायरेक्टली गैशियस फॉर्म में चले जाना, दैट इज नोन एज आर sublimation. So to the left of the curve the substance exists in the solid state while on the right it is in the liquid state. BO represent the vapor pressure of the liquid form of the substance at a various temperatures. ठीक है, then this curve is also known as the vapor pressure curve of the liquids. Above this curve the material exists in the form of liquid while below this point it only appears in the form of vapor. उस पॉइंट से ऊपर ये हमेशा आपका लिक्विड फॉर्म में मिलेगा और जैसे ही उस पॉइंट से ये बिलो आते हैं तो आपका जो भी मटेरियल है वो वेपर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। द कर्व CO रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर, ठीक है, जो हमने बताया। नाउ वी हैव क्रिटिकल पॉइंट। नेक्स्ट वी हैव क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट की हम बात करते हैं। इट इज द पॉइंट देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन सैचुरेटेड लिक्विड्स एंड सैचुरेटेड वेपर्स। क्रिटिकल पॉइंट कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट है जिस पॉइंट में ना ही तो आप लिक्विड्स के बीच में, ठीक है, ना ही तो आप वेपर्स के बीच में जो कि सैचुरेटेड है उनमें डिफरेंस बता सकते हैं। सो एट दिस पॉइंट लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज जीरो। लेटेंट हीट क्या है आपको पता है ना, हिडन हीट, वो क्या है हमारी, जीरो हो जाती है। जैसे कि वाटर की अगर हम बात करें तो क्रिटिकल प्रेशर जो यहाँ पे लगा हुआ है दैट इज 22.064 मेगापास्कल्स एंड क्रिटिकल टेम्परेचर विच इज रिक्वायर्ड फॉर वाटर इज 647.096 केल्विन, दैट इज 337.946 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो क्रिटिकल पॉइंट में क्या है आपका, जैसे जैसे प्रेशर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। सपोज दिस इज आवर कर्व, ठीक है, दिस इज आवर कर्व। यहाँ पे क्या है, ये हमने टेम्परेचर ले लिया, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इज आवर वेपर। हमने दोनों कंडीशन रख ली। अब हमारा यहाँ से एक पॉइंट हमें ये मिला, जिस पॉइंट पे यहाँ से और यहाँ से, दीज टू पॉइंट्स, ठीक है, ये दो पॉइंट में क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है ना, चाहिए होगा ना सैचुरेटेड करने के लिए। तो जैसे जैसे अमाउंट ऑफ हीट हमारी चलती जाएगी, प्रेशर हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट इज टू बी एडेड, अमाउंट ऑफ हीट को भी हमें इसमें ऐड करना होगा। तो क्या होगा, यहाँ से ये ऐसे होगा, कमिंग कमिंग, here you will get a particular point in the top, ठीक है, this point, okay, so pressure increase, the amount of heat to be added keeps on reducing and become to zero। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं अमाउंट ऑफ हीट हमारी रिड्यूस होती जा रही है और फाइनली ये किस में अपीयर हो गई, जीरो में अपीयर हो गई, जीरो अपीयर हो गई। सो दैट इज नोन एज द वेपराइजेशन और इट इज ऑल्सो नोन एज द वेपराइजेशन ऑफ जीरो। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट को ही हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। दिस पॉइंट इज नोन एज आर क्रिटिकल पॉइंट। सो we'll discuss here two things in our phase diagram, that is critical point and triple point. Triple point मैंने आपको principle में बताया, now I am talking about critical as well as your triple point. So first of all we'll discuss with critical point. Critical point जैसे इससे पहले ही बता दिया, here is your vapor, here is your pressure, this is the curve, right? ये आपका कर्व है। इस कर्व में जैसे आप चलेंगे तो this is your saturated liquid line and this is your saturated vapor line। ये saturated liquid line है, यहाँ से ये saturated vapor line है आपकी, saturated liquid line and saturated vapor line। ये आपका subcooled region है, subcooled region and this is superheated region, superheated region, okay। तो आपके पास सबकूल भी हो गया, सुपरहीटेड भी हो गया। Here we'll move to this is a point which we get in the middle of this curve, this point is known as our critical point, ठीक है। To parallel to this point we have the critical pressure and in
बॉटम वी हैव द क्रिटिकल वेपर, ठीक है, हमारे पास ये दोनों पॉइंट आ जाते हैं. नाउ इन दिस वी हैव लिक्विड प्लस वी हैव वेपर, हमारे पास इस कर्व में दोनों की दोनों चीजें अवेलेबल हैं. सो दिस इज नोन एज योर क्रिटिकल पॉइंट. क्रिटिकल पॉइंट टू दिस पैरेलल टू द प्रेशर, यहाँ पे हमें प्रेशर ऑफ दैट क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, बॉटम में हमें प्रेशर ऑफ दैट क्रिटिकल वेपर मिल जाएगा. सो critical point you can define as it is that point where no distinction in the saturated liquid as well as saturated water. वेपर में, आपके लिक्विड में और आपके वेपर में आप डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते हैं. दे आर सेचुरेटेड टू अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड दैट इज, वहाँ पे आपका जो हीट अप्लाई हो रहा है वो जीरो हो चुका है. दैट पॉइंट इज नोन एज योर क्रिटिकल पॉइंट. ठीक है, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, दैट इज आर ट्रिपल पॉइंट. ट्रिपल पॉइंट में आपको बताया था इससे पहले ही. ठीक है, हेयर वी हैव आवर प्रेशर, हेयर वी हैव आवर टेम्परेचर, राइट. एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे हमें मिला, ठीक. दिस इज फ्यूजन पॉइंट, फ्यूजन. दिस इज योर वेपराइजेशन लाइन, ओके, and this is your sublimation line, sublimation line. This particular point is known as your triple point. Triple point क्या था आपका, जहाँ पे आपके solid, liquid और gas तीन vapor, solid, liquid and vapor exist in a coexist simultaneously. That particular point is known as your triple point. So आपका जो ये region है, ये है आपका liquid का region, सॉलिड का रीजन, ये लिक्विड का रीजन और ये आपका वेपर का रीजन. तो आपके तीनों के तीनों चीज़ें जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक साथ साइमल्टेनियसली कोएग्जिस्ट करते हैं, वो पर्टिकुलर जो रीजन होगा उसको हम बोलते हैं आपका ट्रिपल पॉइंट. सॉलिड, लिक्विड्स एज वेल एज वेपर, all three exist simultaneously in a particular position with a particular denotation of a point, that is known as your triple point, which we have mentioned here. Okay. Next we have eutectic mixtures. In Greek, eutectic means easy melting, और आप eutectic को ऐसे भी बोल सकते हैं, it is a two component system. ठीक है, ग्रीक वर्ड में eutectic का मतलब होता है easy melting, जो जल्दी से मेल्ट हो जाए, और हम इसको ये भी कहते हैं कि दो कंपोनेंट सिस्टम. तो कुछ सब्सटेंस जैसे कि आपके पास है मेथनॉल, थाइमोल, कैम्फर, फेनॉल, सेलॉल एक्सेट्रा, when mixed in a particular proportion tend to liquefy due to the reduction in their respective melting points. अगर हम इनको एक साथ रखें और हम इनको लिक्विफाई करना चाहते हैं तो क्या होगा, there is a difference in their melting points. मेंथॉल का कुछ और है, थाइमोल का कुछ और है, कैम्फर का कुछ और है, फेनॉल का कुछ और है. तो अकॉर्डिंग टू द रिडक्शन इन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंसेस, आपके सब्सटेंस क्या होंगे, मेल्ट होना शुरू करेंगे. मिक्सचर्स ऑफ सच सब्सटेंसेस आर नोन एज यूटेक्टिक मिक्सचर्स. तो जो मिक्सचर हमें इसके बाद मिलेगा आफ्टर मेल्टिंग ऑफ दैट सब्सटेंसेस, दैट मिक्सचर इज नोन एज योर यूटेक्टिक मिक्सचर. So now we talk about the principle of eutectic mixture. Let us consider two substances A and B. Okay, the point A and B represent the melting point of the two components. As increasing quantities of B are added to A, the freezing point of falls to along the curve AC. Similarly, an increasing quantity of A are added to B, the freezing point of B falls along the curve BC. So at a particular composition C known as eutectic point, the mixtures of two substances has the lowest melting point. This composition of the two substances is known as the eutectic mixtures. Point C is your eutectic point and point E is your eutectic composition. Here you can see in the diagram which I have already drawn that E is the composition which is mentioned here, and here is solution A 100%, here is a solution B 100%. यहाँ पे हमारे पास जो दोनों चीज़ें, they both are in the form of solid. We are talking about solid only. तो A हमारे पास 100% है, B भी हमारे पास क्या है, 100% है. हमारे पास
एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है आपका जो भी यहाँ पे प्रेशर है। नाउ आपके पास जो ये सी पॉइंट है, ठीक है, सी पॉइंट आपने पढ़ा वो क्या है आपका यूटेक्टिक पॉइंट। दिस इज द यूटेक्टिक पॉइंट जहाँ पे आपका ए सॉलिड एंड सॉलिड बी दोनों के दोनों प्रेजेंट हैं। सॉलिड ए का सोल्यूशन है, ये सॉलिड बी का सोल्यूशन है और बीच में आपका क्या है, लिक्विड सोल्यूशन है। अब बात ये करनी है कि अगर हम एक कंपोजिशन की बात कर रहे थे, यहाँ पे ए 100% है, यहाँ पे बी 100% है। अगर मैं यहाँ से इसमें एक चीज़ करना चाहूँ कि जैसे ये यहाँ से इधर इफ इट रन्स हेयर टू देयर, तो ये ए 100 से इस पोजीशन पे हमें 80% मिलेगा। और अगर हम बी कंपोनेंट की बात करें फ्रॉम देयर टू हेयर, तो यहाँ से हमें बी कितना रह जाएगा हमारे पास, ऑलमोस्ट 20%। यहाँ पे ए बी जो है आपका 80% रहेगा, यहाँ पे ए पहुँचते पहुँचते आपका 20 रह जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि हमने दो कंपोजिशन लिया है, सॉलिड ए का और सॉलिड बी का, तो अगर हम कंपोजिशन लेंगे तो अमाउंट ऑफ ए अगर ज़्यादा है तो बी का कम रहेगा प्रोपोर्शन, और अगर हम इस एंगल से बात करते हैं तो अगर हमने बी का कंपोनेंट ज़्यादा है तो ए का कम होगा। डेफिनेटली जब दो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं तो दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि जैसे मान लीजिए ए टेम्परेचर के साथ रेज करेगा तो ये यहाँ मेल्ट करेगा। इट्स नॉट मैंडेटरी कि जो बी का 20% है वो भी यहाँ आके मेल्ट करेगा। सो द मेल्टिंग पॉइंट विल चेंज ऑन द वेरिएशन ऑफ द पॉइंट्स सॉलिड्स विच वी हैव। जितना प्रोपोर्शन आप सॉलिड का लेंगे, ए का कितना ले रहे हैं और बी का कितना ले रहे हैं, ऑन दैट प्रोपोर्शंस आपका मेल्टिंग पॉइंट जो है पर्टिकुलर सॉलिड का वो चेंज हो जाएगा ऑन दैट proportion of the amount of solid which are taken to melt. Okay, so eutectic composition is where जहाँ पे आपका A भी मेल्ट कर रहा है और B भी मेल्ट कर गया, एंड देन वी आर गेटिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज C, और C में क्या है हमारा सॉलिड A और सॉलिड B दोनों का ही कंपोजिशन था जो कि मेल्ट हो चुका है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आने के बाद, और हमको उसका सोल्यूशन मिला है कंपोजिशन। ठीक है, below the eutectic temperature the mixture of two substances will exist as solid, while above it the mixture will convert into the liquid. जैसे ही जो आपने बताया eutectic temperature से below जैसे हम जाएंगे तो जो दो substance का हमारा मिक्सचर है वो दो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो क्या करेगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा अगर उसका टेम्परेचर यूटेक्टिक मिक्सचर का रेज होता है। इन pharmaceutical practice eutectic mixtures are difficult to dispense in the form of powder. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या है, यूटेक्टिक मिक्सचर्स को हम अगर पाउडर को हम डिस्पेंस करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हम यूटेक्टिक मिक्सचर्स के साथ डिफिकल्टी को फेस करते हैं। इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट सच मटेरियल इन अ पाउडर it is essential to first mix each ingredient separately with an inert diluent such as light magnesium oxide, magnesium carbonate, starch, kaolin, etc., followed by gentle blending of the different portions. तो जब हमें पता है कि दो डिफरेंट सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, तो अगर हम एक कंपोजिशन बनाएंगे तो उस कंपोजिशन का वो मेल्टिंग पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि एक का अलग है दूसरे का अलग है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, अगर ऐसा हमारे साथ बहुत ज़्यादा होता है पाउडर्स के साथ, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमारा पाउडर मटेरियल है उसको हम किसी एक इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स कर लेते हैं जिसका वो कंपैटिबल है। ठीक है, इनर्ट डाइल्यूएंट्स जैसे हम ले लें, एग्जांपल में मैंने आपको बता ही दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, स्टार्च ले लो, केओलिन ले लो, ठीक है, जिनको हम ब्लेंड करके एक प्रपोर्शन बना लेंगे कि जितना प्रपोर्शन इसका है इतना, मीन्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म यू कैन से रेशो, वी कैन टेक इन द फॉर्म ऑफ रेशोज। सो अल्टरनेटिवली द eutectic materials can first be triturated together in order to force them to liquefy. अब क्या होता है, उनको हम ट्राइचुरेट करते हैं, ट्राइचुरेट इसलिए करते हैं ताकि वो लिक्विफाई हो जाए। द लिक्विड कैन देन बी एब्जॉर्ब ऑन एन इनर्ट डाइल्यूएंट। तो जो आपका लिक्विड है वो एब्जॉर्ब कब हो जाएगा, डाइल्यूएंट इनर्ट होने, जो हमने डाइल्यूएंट यूज किए दे आर इनर्ट इन नेचर, ड्यू टू दैट जो लिक्विड है वो हमारा ट्राइचुरेशन के टाइम पे ही absorb हो जाएगा। The phenomena of eutectic formulation has also been used in the pharmaceutical practice to improve the dissolution behavior of certain drugs. ये हम कब देखते हैं बहुत ज़्यादा, जो dissolution behavior देखना होता है। Dissolution means we have to
check the time for a drug particularly getting into a systemic circulation to distribute there and then to disintegrate there and then to distribute. तो डिसोल्यूशन के टाइम पे हमें ड्रग्स का क्या, अगर मान लीजिए किसी ड्रग का मेल्टिंग पॉइंट कम है, किसी का ज़्यादा है, अगर एक साथ दे रहे हैं तो एक का जो है वो उस स्टमक pH पे पहुंच के डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा, दूसरा तो नहीं करेगा. तो उस कंडीशन में हमें यूटेक्टिक मिक्सचर्स का बहुत ध्यान देना होता है. एग्जाम्पल, वी हैव डिजोल्व मोर रैपिडली देन ड्रग अलोन. यूटेक्टिक मिक्सचर्स में ड्रग जिनको हम डिजोल्व मोर रैपिडली देन ड्रग अलोन, अगर एक सिंगल ड्रग को हम दे रहे हैं और अगर हम एक यूटेक्टिक मिक्सचर के साथ डाइल्यूएंट के साथ उसे ट्राइचुरेट करके एक बना रहे हैं, वो इजीली डिजोल्व हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, आप लिखा हुआ है नीचे, दैट इज मेंशन्ड एस्प्रिन एंड एसिटामिनोफेन मिक्सचर. डिफरेंट प्रोपोर्शन दिया हुआ है, 37% ऑफ aspirin as well as 36% of acetaminophen we have taken, we have triturated and formed a form of eutectic mixture. Nextly we have urea and acetaminophen mixture. यूरिया का हमने concentration 46% लिया और acetaminophen का कितना लिया, 54%. then we again formed a composition. Nextly we have next third example, glucifilin and succinic acid, जिसमें आपने glucifilin का क्या 55% and succinic acid का 45% लिया and again we formed a mixture. So what are the applications of eutectic mixture? Here I have mentioned one application of eutectic mixture, that is lidocaine and prilocaine. These two local anesthetics forms eutectic mixture at 1:1 ratio at 18 Celsius. The mixture forms liquid at room temperature, then can be used as mixed local anesthetic for topical application. तो हम लिडोकेन और प्रिलोकेन का 1:1 का रेशो लेके टॉपिकल एप्लीकेशन बनाते हैं, जो कि हमारा लोकल एनेस्थेटिक के फॉर्म में काम करता है. और ये जो मिक्सचर है हमारा, ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, इसलिए हम इसको टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं. सो इन दिस lecture we have covered the following things, that firstly we discussed about the sublimation, what is sublimation, then we discussed the disposition with principle illustrating the phase diagram of sublimation, as well as we have covered the critical point क्या होता है, and we generally talked about the water only. हर component का अपना एक different critical point होता है और एक different आपका ट्रिपल पॉइंट होता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स का डिफरेंट होता है, ठीक है. एंड हियर वी डिस्कस द यूटेक्टिक मिक्सचर्स ऑल्सो. यूटेक्टिक मिक्सचर्स में आपके जो भी वी डिस्कस प्रिंसिपल, वी ऑल्सो डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ यूटेक्टिक मिक्सचर विद द proportions, and lastly we discussed with the examples of some mixtures which we use in pharmaceutical industry for the better commercialization of drugs. Lastly we discussed the application of our eutectic mixtures. So with this I have done my next lecture on sublimation as well as eutectic mixture. This is the reference, and thank you so much.